And a very good morning to all of you. Today the topic we are going to discuss is geometrical optics. Geometrical mean any object which have a definite shape. Uh, Definite shape mean it may be a straight line, a circle, or the semicircle, or a rectangle or triangle, any shape which can be defined, that is known as geometrical shape. Geometrical optics. The term optics is related to the term light. And here, since the instruments we are concerned, which are dealing with the lights, those are the lenses and the mirrors. So geometrical optics is the chapter or the unit in which we study different features of light and how light can be traveled, how light can be reflected, and how it can be refracted from one medium to the other medium. You have a very good idea about the medium. Medium is a place or a material through which any object can move. Here you can see when you read a book, my dear students, so if there is no light, you cannot read a book because light reflect the things to your eyes. Remember, the color of the books, the color of the pages actually are the colors of light which are being reflected to your eyes, and you are reading that book. And you have observed the process of rainbow. In rainbow you have seen that light can be distributed or divided into 7 constituent colors. 7 constituent colors are the colors of light. Actually, light is a combination of 7 colors, and when they come together, the white light form again. Today, a very simple and easy and very much observed process you observe daily, the reflection of light. बच्चों, जब आप सुबह अपने आईने के सामने खड़े होते हैं तो आप अपना चेहरा देखते हैं उस आईने में, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। जो आपकी हालत होती है, जो आपने कपड़े पहने हैं, या जो आपका हेयर स्टाइल है, या जो आप जिस तरह की अपीयरेंस है, आपको बिल्कुल वैसा ही आपका इमेज मिरर में नजर आता है। ऐसा नहीं होता है कि आप मिरर में कुछ और हों और अपने सामने कुछ और देख रहे हों, अगर आप प्लेन मिरर यूज कर रहे हैं अपने घर में। तो जब लाइट मिरर के ऊपर पड़ती है तो मिरर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। लाइट की ये खूबी है, रोशनी की ये खूबी है कि वो जब किसी भी शाइनी स्मूथ सरफेस के साथ जाकर टकराती है तो वो वापस पलट कर आ जाती है। इस अमल को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ प्रोसेस इन विच the rays of light come back, bounce back to the same medium in which it was produced. अगर मैं आप देखें this is a schematic picture of a mirror. You can see, Abhi, please remain in focus. This is a plane mirror, and this plane mirror is laying here, and it is represented by the line OM. And you can see this ray, a light ray, enter from point A and reaches the mirror at point O. यहां से A पॉइंट से O की तरफ एक लाइट रे आ रही है। इस लाइट रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट का मतलब है जो फॉल करती है, जो आती है, जो प्राइमरी लाइट है। अच्छा, अब यहां से मिरर को जब लाइट ये टकराती है तो टकराने के बाद ये लाइट यूं करके रिफ्लेक्ट हो जाती है बी की तरफ। इस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अच्छा बेटा, गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप यहाँ पर एक स्पॉट है, आप कह लें कि एक ब्राइट स्पॉट है, तो अगर आप इसको देखना चाहें, ये सामने मिरर है,
तो ये आपको पॉइंट बी पर ही नजर आएगा। अगर आप यहाँ चले जाएं या इधर से देखने की कोशिश करें तो ये आपको रिफ्लेक्शन के बाद दिखाई ही नहीं देगा, आपको दिखाई कहाँ देगा, बी पॉइंट पर। इसका मतलब है लाइट एक खास एंगल पर, जिस एंगल पर पड़ती है इस मिरर के ऊपर, उसी एंगल से वापस लौट जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, when light traveling in a certain medium and fall on the surface of another medium, a part of it turn back in the same medium. अच्छा, एक बहुत ही थोड़ा सा पार्ट जो है वो उस मिरर के अंदर भी एब्जॉर्ब होता है, मिरर के अंदर भी थोड़ा सा जाके एब्जॉर्ब करके मिरर को अंदर से रोशन करता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। अभी वो आप इसको समझें यही कि लाइट जब पड़ती है किसी मीडियम के ऊपर तो टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती हुई। ये जो मैंने यहाँ पे ये पढ़ रहा हूँ नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन जो है इस ओ एम के परपेंडिकुलर है, ये 90 का एंगल बना रही है, इसलिए इसको नॉर्मल लाइन कहते हैं। जब भी नॉर्मल लाइन बनेगी, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे नॉर्मल लाइन, तो नॉर्मल लाइन का किसी दूसरी लाइन के साथ एंगल 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री और ये नॉर्मल लाइन जो है, दोनों आप देख सकते हैं ये ओ एम और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बनाती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल है। अच्छा, एक और बात है, अब उसको हम कहते हैं प्लेन, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जब ये लाइट यहां पर आई है तो आने के बाद ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो एक दूसरे के इक्वल हुआ है। दूसरा ये है कि ये एक दूसरे के साथ मिलकर एक ही प्लेन बनाती हैं, यानी ये दोनों एक ही लाइन में हैं। एक ही लाइन का मतलब है ये नहीं है कि एक ऊंची है एक नीची है, यानी एक ही प्लेन बनाती हैं। यानी अगर हम इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर एक कागज रखें या एक बोर्ड रखें तो वो दोनों को टच करेगा, इसका मतलब है वो एक ही प्लेन बनाती है। जी, तो हमने इसमें याद क्या करना है, इस डेफिनेशन याद करेंगे, इसके डायग्राम को याद करेंगे। व्हेन लाइट traveling in a certain medium falls on the surface of the other medium, a part of it turns back in the same medium. This process is called reflection of light. Now there are two laws, there are two rules by which this reflection takes place. Number one, the incident ray, the normal line, and the refracted ray at the point of incidence. यानी जो रिफ्लेक्टेड है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ, यहाँ पर ही नॉर्मल लाइन भी आ रही है और यहाँ पर भी इंसिडेंट रे भी आ रही है। तो ये तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही सीध में है, ये और ये एक ही लाइन में है। So the incident ray, the normal, and the reflected ray at the point of incidence all lie in the same plane. This is the first law of reflection. Number two, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. If this angle is 35, this angle will also, R will also be 35. If this is 80, it will also be equal to 80 degree. So this is the law of reflection and how light reflect when it falls on a smooth shiny surface. So if you people have any question, you can unmute your microphone and you can ask me. Or even you can write in the chat box. If it, okay, thank you. Now, reflection of light. Here you can see a smooth surface. All the incident rays are falling on the smooth surfaces or the surface, and they are reflected. They are you can see they are being reflected. Angle of incidence making angle of reflection, both are equal. And on the other hand, the surface is rough, either it is shiny but it is rough, and you can see all the incident rays are falling on this surface
making certain angle, but they are being reflected making different angles of reflection. So in this case we call it is a regular reflection, and this is called irregular reflection. इसको हम रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस फिनोमिना को, इसकी अहमियत आप इस तरह से अंदाजा कर सकते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन का। देखिए जो हवा है वो भी एक मीडियम है और उसमें पार्टिकल्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स भी होते हैं। तो आप अगर विंडो खोलते हैं या अपना दरवाजा खोलते हैं घर का, तो आप देखिएगा कि डायरेक्ट सनलाइट आपकी खिड़की में अगर नहीं भी आ रही तो फिर भी कमरे में रोशनी आ जाती है, कमरा ब्राइट हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। यानी डायरेक्ट सनलाइट नहीं भी आ रही, फिर भी लाइट जो है वो हवा के पार्टिकल से टकरा कर विंडो में से हमारे पास पहुंच जाती है। इसी तरह अगर आप देखें मगरिब के बाद, जब मगरिब हो जाता है, सूरज गुरूब हो जाता है, तो उस वक्त के बाद भी जमीन पर रोशनी होती है। वो रोशनी भी इसी वजह से होती है क्योंकि वो सूरज की जो शुआएं हैं उनके साथ जो एयर के पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनसे टकराकर वो थोड़ी देर के लिए जमीन पर रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इस इरेगुलर रिफ्लेक्शन को आप देख सकते हैं एक नदी में, एक झील में, जब पानी हिल रहा होता है और उन वेव्स के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो आप देख सकते हैं कि वो लाइट किस तरह से इरेगुलरली रिफ्लेक्ट होती हुई आपको चमकते सितारों की तरह नजर आती है। So this was the effect of light and reflection and the regular and irregular reflection. So irregular reflection is the reflection in which the angle of incidence is equal to the angle of reflection. And in irregular reflection, the angle of incidence is not equal to the angles of reflection. And regular reflection take place on the smooth, shiny surfaces, and irregular reflection take place in the rough and wavy surfaces. Okay. अब यहाँ पे आपको एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि जब आप आईना देखते हो, यहाँ पर ये देखिए फिजिक्स लिखा है, यहाँ पर उसके सामने मिरर है, तो मिरर में जो इमेज नजर आता है वो उल्टा नजर आता है। ऐसे ही होता है जी। आपको मिरर में हमेशा लेफ्ट साइड राइट नजर आती है और जो राइट साइड होती है वो लेफ्ट नजर आती है। उसकी वजह यह है कि मिरर जो है उसमें इसको कहते हैं, वो इमेज जो है वो क्या बना देता है, उसको उसको हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड, यानी वो लेफ्ट को राइट कर देता है और राइट को लेफ्ट कर देता है। आज जो है हमारा टॉपिक एक बड़ा अहम है, इसको आप समझिए। ये पूरा जो ये तो एक अलग से क्वेश्चन कवर हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द रूल और व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप वो लिखेंगे। अगर पूछा जाए एग्जाम्पल तो आप ये दे सकते हैं। एक है टॉपिक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू अ स्फीयर। अब देखें स्फीयर क्या होता है, जैसे आप एक फुटबॉल देखें तो वो एक स्फेरिकल शेप में है, हमारी जो अर्थ है ये स्फेरिकल शेप में है। अगर एक आप ऑरेंज लेते हैं तो ऑरेंज भी स्फेरिकल शेप में है। अच्छा, आप एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने एक ऑरेंज को लिया और उसको आपने उसके दो हिस्से कर दिए। जब आपने दो हिस्से कर दिए तो वो उसके हेमिस्फीयर बन गए। उनको क्या कहते हैं? हेमिस्फीयर। दो पार्ट्स बन गए। अब आप उन दोनों जो हेमिस्फीयर्स हैं उनको अंदर से खाली कर लीजिए, यानी उसका जो पल्प है वो निकाल लीजिए, तो आपके पास दो बॉल्स से बन जाएंगे। ये जो बाउल से बन जाते हैं आपके पास, ये क्या है? इनको कहते हैं हेमिस्फीयर। अब अगर आप एक बाउल को अंदर से चमकदार बना लें, यानी जो अंदर से वाइट उसका जो एक मेम्ब्रेन सी है उसको आप शाइनी कर लें और वहां से आप देखें तो ये एक मिरर बन जाएगा जिसको हम कहेंगे इसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर, जो अंदर से गहरा है।
अब जो दूसरा हेमिस्फीयर था उसको आपने, जो उसकी ऑरेंज साइड है, जो बाहर वाला एरिया है, आप उसको शाइनी कर लें। अब वो वाली जो सरफेस है शाइनी है, तो आप उसको कहेंगे इसकी आउटर सरफेस जो है, जो उभरी हुई सरफेस है, रेज्ड सरफेस है, वो शाइनी है। तो ये वाला जो मिरर बनेगा, इस मिरर को हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दो मिरर्स हमने एक ही सफेयर से बना लिए। तो जो सफेरिकल मिरर्स हैं ये एक सफेयर का ही हिस्सा होते हैं। तो ऐसे मिरर्स जो किसी सफेयर का हिस्सा बने, विच आर द पार्ट ऑफ अ सफेयर, दे आर कॉल्ड सफेरिकल मिरर्स। एक मुझे बात बताइए, अगर आप एक बिल्कुल न्यू शाइनिंग चम्मच लेते हैं या प्लेट लेते हैं स्टील की, तो वो बड़ी शाइनी होती है। स्टील प्लेट की मैं बात कर रहा हूँ जो प्लेन हो अंदर से, और आप उसमें अपना इमेज देखें, तो आप देखेंगे कि अगर आप अंदर से देखें ना, प्लेट की जो गहरी साइड है उस तरफ से देखेंगे, तो आपको अपना इमेज उल्टा नजर आएगा। लेकिन अगर आप प्लेट के बैक साइड पे देखें, जो उसकी रेज्ड सरफेस है, उभरी हुई सरफेस है, तो वहां पर आपको अपना इमेज जो है वो सीधा नजर आएगा। आपने देखा होगा कि अगर आप हिली एरियाज में जाते हैं तो वहां पर मिरर्स लगे होते हैं जहाँ पे शार्प टर्न्स आते हैं। तो वो शार्प टर्न्स आते हैं, वहां पर कॉन्वेक्स मिरर लगाए होते हैं ताकि दोनों तरफ से ट्रैफिक को कवर किया जाए, क्योंकि उसका जो एक्सपोज्ड साइड होती है वो ज्यादा होती है दोनों तरफ से, इसलिए वो दोनों तरफ का व्यू आपको दिखा देता है। इसके लिए आप ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊं, मेरे पास यहाँ पर एक पिक्चर थी स्पून की। I want to show that picture. Yes, here I magnify it and you will observe. Okay. Here you can see a girl is standing in front of a spoon. When the spoon is polished, and if the inner side is polished and she is watching through the inner side, the inverted image is seen. And if she is watching from the outer side, raised side, so you can see the erected and the straight image is displayed. So this is the example of the spherical mirror on both the types it is representing. This mirror is called convex mirror and this is called concave mirror. This is convex and this is concave. इस तरह के बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उन पे भी लगे होते हैं, स्पून ही लगे होते हैं, बड़े बड़े मिरर लगे होते हैं, और रोड्स के एजेस पे भी, शार्प टर्न्स के ऊपर भी लगे होते हैं। तो एक्चुअली ये देखिए इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। ये कॉनकेव मिरर है, ये वाला जो है दिखाया गया है। इससे देखें लाइट इधर आती है और इधर आके इकट्ठी हो जाती है, अंदर से रिफ्लेक्ट होती है, ये उल्टा। और यहाँ पर लाइट इसमें डिस्पर्स होती है। कॉन्वेक्स मिरर जो है ये डिस्पर्स करता है, लाइट रेज को बखेर देता है। ये खैर इसके बाद में हम देखते हैं। ओके, सो all right, look here, this is concave mirror and this is a convex mirror. Concave mirror is, you can see the radius, the inner surface of the mirror is shiny and reflected. And here this mirror, in convex mirror, the outer surface is reflecting. ये जो black line आपको नजर आ रही है, black line जो नजर आ रही है ना, ये वाली बाहर वाली साइड पे, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, या इस तरफ देखा जाएगा, ये उभरी हुई सरफेस है इसकी, और यहाँ से देखा जा सकता है ये मिरर जो है ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आने। द सेंटर ऑफ द sphere is called center of curvature. Okay, and you can see here it is also the center of curvature. The center of the sphere जिससे ये मिरर बना है, that is called center of curvature.
अच्छा, ये जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छा मिरर का जो सेंटर है, जैसे एक प्लेट का जो सेंटर होता है उसको हम पोल कहते हैं, द सेंटर ऑफ द मिरर। जैसे चम्मच का जो जिधर से आप देख रहे हैं वो साइड, उसका जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड पोल। ये इसका यहाँ पर ये पोल है। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल में से जो लाइन गुजरती है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये लाइन जो है इमेजिनरी लाइन है। इस हम लाइन को क्या कहेंगे, क्योंकि हमने इसको यूज करने आगे इसके प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है काफी। सो प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन which pass through center of curvature and the pole. That line is called principal axis. Okay, now the size of the mirror from one end to the other end, you can see, for example, the radius of the diameter of the plate, if you can say the diameter of the plate is called radius of curvature. So here the radius of curvature start from this point and it ends to the other point opposite to it. So these are the spherical mirrors. I repeat once again, what are spherical mirrors? Spherical mirrors are the mirrors which are found by the part of a sphere. And there are two types of spherical mirrors. One is convex mirror and the other one is concave mirror. If the inner surface of a mirror is shiny, then it is called concave mirror. And if the outer surface, raised surface of a mirror is of a spherical mirror is polished, that is called convex mirror. And concave mirror and convex mirror definitions are given on the book. Pole I have explained you, it is the midpoint of the curved surface of a spherical mirror. Center of curvature, a spherical mirror is a part of a sphere. Okay, the center of this sphere is called center of curvature. Radius of curvature is the radius of the sphere of which sphere mirror is a part. यानी उस पूरे sphere का जो half है, that is called radius of curvature. Principal focus is a point at which the reflected rays meet with each other. They are called principal focus. तकरीबन यहाँ पर करके इसका principal focus होगा. प्रिंसिपल फोकस ये है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज आके सारी कन्वर्ज होती हैं इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर. फोकल लेंथ होता है द डिस्टेंस फ्रॉम द, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये एक कॉनकेव मिरर है और देखिए सारी पैरेलल रेज जब आती हैं तो इससे रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट में से गुजरती हैं. इस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस. यहाँ पर ये वाला कॉन्वेक्स मिरर है तो ये पैरेलल रेज आती तो है, इस पे स्ट्राइक करती हैं तो ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. और अगर हम इमेजिनरी तौर पर इनको आगे फोकस करें डॉटेड लाइन में, मतलब एक्चुअली ये नहीं कर जा रही वहां पे, तो जिस पॉइंट पर जाकर फोकस होती है उसको इसका प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. तो प्रिंसिपल फोकस और पोल तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. Similarly, this distance is called focal length. So my dear student, this is all about today. And okay, I have